Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are discussing about the second part of the F&B service equipment, and the second topic is the linen. Linen is a textile made from the fibers of the flax plant. Flax plant is basically very suitable for the making of linen that is used in our hospitality industry. Linen is very strong and absorbent and dry faster than the cotton. बेसिकली जब हम रेस्टोरेंट में या फिर बैंक्वेट में अगर हम लिनन यूज़ करते हैं तो कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम बार बार उसको वॉश कर सके लिनन को, और वो वॉश हो जाता है तो इतनी जल्दी ड्राई नहीं हो पाता है। तो जो लिनन है वो कॉटन के कंपैरिजन में बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है और बहुत ज़्यादा अब्जॉर्बेंट भी होता है। सो द फैब्रिक दैट इज़ चूजन by the hospitality industry should be long lasting with non fading colors and must withstand frequent laundering and stain removal process. जो हमारा लिनन होता है वो बेसिकली इस टाइप का होना चाहिए कि वो स्टेन रिमूवल बहुत जल्दी हो जाए, उससे कि हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े उस चीज़ के ऊपर। फ्रीक्वेंट लॉन्ड्री हो कि बहुत जल्द ईजीली वॉश भी हो जाए, ड्यूरेबिलिटी भी हो और वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे। नेक्स्ट आता है हमारा यूजेस ऑफ लिनन। अब यूजेस ऑफ लिनन, इसके बारे में तो हम सब लोग जानते हैं कि अब जो लिनन के यूज़ है वो कहाँ कहाँ होते हैं, किस किस चीज़ में, किस किस इक्विपमेंट में, किस किस हम कहाँ कहाँ पे उसका यूज़ करते हैं लिनन का। तो नंबर 1 पे हमारा टेबल क्लॉथ। ऑल टेबल क्लॉथ्स विद वुडन टॉप आर कवर्ड विद टेबल क्लॉथ्स टू एनहेंस द अपीयरेंस ऑफ द डाइनिंग एरिया. Plain tables can quickly be transformed into a formal dining seating by using tablecloths. The tablecloths are generally used in fine dining restaurants. The color of the tablecloth must go well with the color scheme of the interior. Hotels with many restaurants may use different colored clothes for each of their outlets for easier identification and control of the linen movement. Now we are talking about the importance of the tablecloth. The tablecloth is for the identification because in the hotel we have many outlets, so it's very easy to recognize the outlet by the color of linen. Next is the control of linen movement. अब अलग अलग आउटलेट्स होती हैं तो वो बहुत इजीली हम रिकग्नाइज कर सकते हैं वॉश करते टाइम पे, चेंज करवाते टाइम पे कि हाँ ये जो लिनन है ये इस आउटलेट का है, वो उस आउटलेट का, वो उसकी कलर कोडिंग होती है, उसके थीम के हिसाब से होता है। तो एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इसकी इंपॉर्टेंस है, कंट्रोल ऑफ लिनन मूवमेंट। उसके बाद कुछ एक दूसरे डिपार्टमेंट जो होते हैं वो एक दूसरे का लिनन जो है वो स्टोर कर लेते हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये बहुत अच्छा हमारा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द साइज ऑफ टेबल क्लॉथ. The tablecloth size of the cloth depends on the size of the table to be covered, that how much area we will covered by the tablecloth. So let's consider minimum fall of 9 inch from the edge of the table. It's very easy to calculate the size of tablecloth which is required. Suppose to cover a 2 feet 6 inch square table, need 48 inches into 48 inches. Now calculation is like width of table is 30 inches and fall on two sided is 2 inches into 9 equal to 18. Suppose कि हमारे पास कोई टेबल होती है जो है हमारी 2 feet 6 inches स्क्वायर है, यानी कि इसकी जो हर साइड है वो ये वाली भी, ये वाली भी और ये वाली भी, जो हमारी पूरी 2 feet 6 inches है। जो उसकी टेबल की विड्थ है वो 30 inches होगी, और जो फॉल होगी, जो हमारे टेबल क्लॉथ है उसकी जो फॉल होगी वो सिर्फ ओनली 2 साइडेड में जो है हम उसको शो करते हैं, एक इस साइड में एक इस साइड में। सपोज हमने मान लिया तो जो वो 18 इंचेस इस साइड में होगी और वो 18 इंच इस साइड में होगी, और ओवरऑल जो उसकी जो होगी वो 30 इंचेस की होगी, तो टोटल हो गया हमारा 40 इंचेस। Many establishments may change the cloth every day and some for lunch and dinner. And most establishments cover the soiled tablecloth with slip cloth during the service. Now we are talking about the quantity of tablecloth required during the operation. So first point is that number of tables. Then how much tables in our outlet. So we can easily consider that how much quantity we need for the operation. Second point is time taken for washing. जो हमारी वॉशिंग के लिए लॉन्ड्री में जाती है उसमें हमें कितना टाइम लगने वाला, वो वॉश होकर कितनी देर में आएगी, तो उस हिसाब से भी हमें अपनी जो कैलकुलेशन है वो प्रिपेयर करके रखनी पड़ती है कि हमें इतने जो टेबल क्लॉथ है उसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी। थर्ड वन इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंजिंग, कि हम कितने टाइम पीरियड में जो हमारा टेबल क्लॉथ है उसको हम
Napkins are for guest use, normally kept folded at each cover and unfolded and spread on laps of guests by service staff or by guests themselves. It's depending on the situation. Some napkins have buttonholes for attaching to the top button of the shirt. The term called serviette. And now we have sizes of napkins, that 18 into 18 inches for lunch and 20 into 20 inches for dinner. Now we have some points to consider at the time of folding of napkins. These are the use square napkins, because this is very important factor to use the napkins at the time of folding of napkins. अगर हमारे जो napkins है उसकी एक कोना ज़्यादा होगा एक कोना कम होगा तो वो जो fold है वो अच्छे से टिक नहीं पाएगा. सेकेंड इज़ नीट एंड क्लीन. ऑब्वियसली अगर हमारा जो नैपकिन है वो नीट एंड क्लीन नहीं होगा तो वो एक बैड इम्पैक्ट होगा हमारे एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अगर गेस्ट ने देख लिया तो. डू नॉट यूज टॉर्न और फ्रेड नैपकिन्स. कुछ भी कटा फटा या फिर कुछ ऐसा फेडेड कलर का जो नैपकिन है वो बिल्कुल भी यूज़ ना करें. मेक सिंपल फोल्ड. जो फोल्ड्स होते हैं वो बिल्कुल बहुत ही सिंपल फोल्ड बनाए जो कि ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे फोल्ड करने में और कैरी करने में भी उनको आसान होगा. मेक क्रीज वेल एट एवरी स्टेज ऑफ फोल्ड. जो हम क्रीज देंगे उसको बनाते टाइम पे उसकी क्रीज बिल्कुल एक अच्छे तरीके से होनी चाहिए कि जो हमारा फोल्ड है वो बिल्कुल टिका हुआ रहे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम फोल्ड तो कुछ अलग टाइप का करते हैं, बहुत एक स्टाइलिश टाइप का, बट उसकी क्रीज अगर हम अच्छे से नहीं करेंगे तो वो ओपन हो जाता है और वो बहुत बुरा लगता है. अवॉइड कॉम्प्लिकेटेड फोल्ड्स बिकॉज दे लुक अनइम्प्रेसिव व्हेन अनफोल्डेड एंड टेक लॉन्गर टू क्रिएट द फोल्ड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम भी लेंगे और फिर वो बहुत ज़्यादा अनइम्प्रेसिव से होंगे, वो अच्छे नहीं होंगे. Napkins are for guest use, normally kept folded at each cover and unfolded and spread on laps of guests by service staff or by guests themselves. It's depending on the situation. Some napkins have buttonholes for attaching to the top button of the shirt. The term called serviette. And now we have sizes of napkins, that 18 into 18 inches for lunch and 20 into 20 inches for dinner. Now we have some points to consider at the time of folding of napkins. These are the use square napkins, because this is very important factor to use the napkins at the time of folding of napkins. अगर हमारे जो napkins है उसकी एक कोना ज़्यादा होगा एक कोना कम होगा तो वो जो fold है वो अच्छे से टिक नहीं पाएगा. सेकेंड इज़ नीट एंड क्लीन. ऑब्वियसली अगर हमारा जो नैपकिन है वो नीट एंड क्लीन नहीं होगा तो वो एक बैड इम्पैक्ट होगा हमारे एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अगर गेस्ट ने देख लिया तो. डू नॉट यूज टॉर्न और फ्रेड नैपकिन्स. कुछ भी कटा फटा या फिर कुछ ऐसा फेडेड कलर का जो नैपकिन है वो बिल्कुल भी यूज़ ना करें. मेक सिंपल फोल्ड. जो फोल्ड्स होते हैं वो बिल्कुल बहुत ही सिंपल फोल्ड बनाए जो कि ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे फोल्ड करने में और कैरी करने में भी उनको आसान होगा. मेक क्रीज वेल एट एवरी स्टेज ऑफ फोल्ड. जो हम क्रीज देंगे उसको बनाते टाइम पे उसकी क्रीज बिल्कुल एक अच्छे तरीके से होनी चाहिए कि जो हमारा फोल्ड है वो बिल्कुल टिका हुआ रहे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम फोल्ड तो कुछ अलग टाइप का करते हैं, बहुत एक स्टाइलिश टाइप का, बट उसकी क्रीज अगर हम अच्छे से नहीं करेंगे तो वो ओपन हो जाता है और वो बहुत बुरा लगता है. अवॉइड कॉम्प्लिकेटेड फोल्ड्स बिकॉज दे लुक अनइम्प्रेसिव व्हेन अनफोल्डेड एंड टेक लॉन्गर टू क्रिएट द फोल्ड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम भी लेंगे और फिर वो बहुत ज़्यादा अनइम्प्रेसिव से होंगे, वो अच्छे नहीं होंगे. There is only 2 sizes of napkin. Most establishments use napkins of any one sizes. Napkins should be neatly folded by the staff and kept on table either in glasses, on side plates, or in the center of the cover, which enhance the appearance of the table setup. General practice is to keep folded napkins in glasses for dinner setup and on side plate or at the center of the cover for lunch. All covers in a restaurant must have one type of napkin folding and all cover must have a napkin placed in one position. ऐसा नहीं है कि आपने एक टेबल पे अलग नैपकिन रख दिया, दूसरी पे वो उसकी जो पोजीशन है वो कुछ और चेंज कर दिया लेफ्ट साइड. हर चीज़ का सेटअप करते टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए. नाउ द टर्न ऑफ नैपकिन रिक्वायरमेंट्स. जो नैपकिन की रिक्वायरमेंट्स है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ कवर्स, कि हमारे पास कितने कवर्स हैं
टोटल हमारे आउटलेट्स में, दैट इज सीट टर्नओवर कि कितने लोग हमारे पास आज आएंगे खाने के लिए, ऑक्यूपेंसी कितनी है हमारे होटल में, और हमारे जो रेस्टोरेंट का वो हम फोरकास्टिंग के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हमारे जो यस्टरडे वो हमारी सेल कितनी हुई थी, कितने लोग आए थे, उतने लोग आज आएंगे, या हमारे पास कितने रिजर्वेशन है। तो सीट टर्नओवर का हम इस हिसाब से जो है हम अपना एस्टिमेट बना लेते हैं। टाइम टेकन फॉर वॉशिंग, जो हमारी वॉशिंग होती है नैपकिन्स की, उससे भी हम अपना जो है एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हमें कितना टाइम लगेगा और कितने की हमें रिक्वायरमेंट्स होगी हमारे नैपकिन्स की ऑपरेशन के टाइम पे। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नैपकिन फोल्ड्स, जो नैपकिन फोल्ड के जो टाइप्स हैं, बाइशॉप मित्र, कोक्सकॉम, सिंड्रेला शू, कोन फोल्ड, कैंडल फोल्ड, फैन फोल्ड, सेल फोल्ड, पॉकेट फोल्ड, रोजेज फोल्ड। जो आप नैपकिन फोल्ड्स हैं मैं उनकी आपको कुछ इमेजेस वगैरह दिखाऊंगी, जितने भी नैपकिन फोल्ड्स हैं। आई होप कि आपको उनसे थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के जो फोल्ड्स हैं वो दिखने के बाद कैसे लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द स्लिप क्लॉथ। इट इज़ यूज टू कवर सॉइल टेबल क्लोथिंग ड्यूरिंग ऑपरेशंस, कि जो हमारा ऑपरेशन के टाइम पे जो टेबल क्लॉथ है अगर वो डर्टी हो जाता है, कुछ स्टेन्स वगैरह आ जाते हैं उसके ऊपर, तो जो स्लिप क्लॉथ है वो बहुत हेल्पफुल होता है उन सब चीज़ों को हाइड करने के लिए। द साइज ऑफ द क्लॉथ शुड बी सफिशिएंट इनफ टू द कवर सरफेस ऑफ द टेबल विद ए फॉल ऑफ ए फ्यू इंचेस। जो हमारा टेबल क्लॉथ है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उसकी जो फॉल है वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए, वो ईजिली ऐसा लगे कि वो अट्रैक्टिव हो। दिस क्लॉथ इज थिन एज कम्पेयर टू द मटीरियल ऑफ टेबल क्लॉथ एंड वॉश्ड फ्रीक्वेंटली। जो हमारा स्लिप क्लॉथ है वो टेबल क्लॉथ के कंपैरिजन में बहुत ही थिन होता है, और जो उसकी जो वॉशिंग है वो रेगुलर बेसिस पे की जानी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा वेटर क्लॉथ। जो वेटर क्लॉथ है उसको वेटर्स जो है वो कैरी करते हैं ड्यूरिंग द सर्विसेज। एजेस ऑफ डिशेज आर वाइप्ड विद दिस क्लॉथ व्हेन नेसेसरी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ डिशेज होती है बहुत लिक्विड वाली होती हैं, वो कहीं पे गिर जाती हैं या फिर फैल जाती है, तो उसकी जो लुकिंग है, जो आई अपील है, वो अपीयरेंस है वो वैसी नहीं रहती है। तो वेटर क्लॉथ इसलिए होता है कि कहीं पे कुछ भी अगर प्लेट ज़्यादा थोड़ी डर्टी हो जाती है तो उसको क्लीन कर सकते हैं। क्लोथ शुड बी फोल्डेड एंड कैरीड जस्ट अबाउ द रिस्ट। जो वेटर है वो अपने जो रिस्ट होती है उसमें कैरी करते हैं। इट शुड बी क्लीन एंड चेंज इमीडिएटली इफ स्टेन। अगर वहाँ पे कोई स्टेन आ जाता है तो वो बहुत जल्दी उसको चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि वो गेस्ट के बिल्कुल फ्रंट में होती है। While carrying dishes to the table, this cloth is folded and kept under the dish. अगर सपोज कि हम कोई डिश लेके जा रही है बहुत ज़्यादा गर्म है और हम उसको अपने हाथों से उसको कैरी नहीं कर सकते, तो उस सिचुएशन में जो हमारा वेटर क्लॉथ है वो बहुत हेल्पफुल होता है कि हम उसके ऊपर उस डिश को रख के सर्व कर सकते हैं गेस्ट को। द वेटर, जो सबसे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वेटर जो क्लॉथ है उसके बारे में, कि जो वेटर है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको अपने शोल्डर पे डाल लिया, अपनी नेक में डाल लिया या फिर अपनी पॉकेट में टक कर लिया। बिल्कुल भी जो ढाबे के छोटू टाइप होते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है वेटर क्लॉथ के साथ, क्योंकि हम प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल चीज़ें जो है गेस्ट को रिप्रेजेंट करनी पड़ती हैं। दे शुड नॉट यूज़ वेटर क्लॉथ फॉर वाइपिंग देयर फेसेस एंड माउथ ऑल्सो, कि कहीं ऐसा ना हो कि पसीना आ गया, कुछ भी लग गया और उसको हम जो वेटर है वो खुद ही यूज़ कर रहा है, तो ये बहुत ही बैड मैनर्स होते हैं और आपके जो प्रोफेशन है उसके बिल्कुल अगेंस्ट होता है। नेक्स्ट वन इज़ द ट्रे क्लॉथ। द ट्रे क्लॉथ जो होता है हमारा वो जो हमारी ट्रेज होती हैं और जो साल्वर्स होते हैं उनको कवर करने के लिए बनाया जाता है फॉर द बेटर प्रेजेंटेशन एंड गुड ग्रिप फॉर द आइटम्स बीइंग कैरिड। जो भी हम डिशेज वगैरह या फिर कुछ भी चीज़ें जो अगर गेस्ट को सर्व करनी है या फिर हमें क्लियरेंस करनी है, कुछ भी कैरी करके लेके जाना है, तो बहुत अच्छा होता है कि वो ग्रिप बना के रखते हैं उन डिशेज़ के साथ, क्रॉकरी के साथ, कि वो उनके गिरने के चांसेस नहीं होते और जो नॉइस वगैरह होती है कटलरीज की वो बहुत कम हो जाती है ट्रे क्लॉथ को यूज़ करने से। जो क्लॉथ है वो बिजी हो जाता है, बहुत मतलब सॉइल्ड हो जाता है कि उसको हम मूव करते हैं, हम ऑपरेशन में यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, सॉइल्ड हो जाता है। और जो ट्रेनीज़ है वो बिल्कुल भी इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनको
उस तरीके से कैरी करना नहीं आता है, और जो अगर इस सिचुएशन में हमें उसको बार बार चेंज करना चाहिए। अगर हमें लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा डर्टी हो गया है, वो बहुत ज़्यादा अगर हम गेस्ट के सामने प्रेजेंट करेंगे तो बहुत बुरा लग सकता है। सो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बहुत सारी जो होटल इंडस्ट्री है वो एक रेक्सिन मटेरियल के जो साल्वर्स हैं वो यूज़ करते हैं। वो एक मतलब काइंड ऑफ लेदर होता है कि उस पर आपने सिर्फ कपड़ा मारा बिल्कुल साफ़ हो गया, उसको आपको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि आप इसको वॉश करवा के लेकर आना, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, कुछ नहीं होता ऐसा। वो एक ऐसा क्लॉथ यूज़ करते हैं जो लेदर सा बना हुआ होता है, वो बहुत इजीली जल्दी से वॉश भी हो जाता है, जल्दी ड्राई भी हो जाता है, उसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा बिल्कुल जो ट्रे क्लॉथ होता है वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, घिसा पिटा भी नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा बुरा लगे। सो नेक्स्ट आता है हमारा बुफे क्लॉथ। जो बुफे क्लॉथ है यूज टू कवर द बुफे टेबल्स। ऑब्वियसली सिर्फ उसके कुछ ज़्यादा फीचर्स नहीं है कि क्या क्या यूज़ होता है, वो सिर्फ एक जो बुफे टेबल्स होते हैं उनको कवर करने के लिए ही यूज़ किया जाता है बुफे क्लॉथ। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं कि जो हम बुफे टेबल को कवर कर रहे होते हैं उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं वो हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो दिमाग में रखनी चाहिए। फर्स्ट वन इज द सेंटर क्रीज ऑफ बुफे क्लॉथ शुड बी इन द मिडल ऑफ द टेबल। जो उसकी सेंटर क्रीज होती है कोई भी, क्योंकि वो लॉन्ड्री से अगर प्रेस होके आता है तो बिल्कुल उसकी जो फोल्ड होता है वो उसकी पूरी डायमीटर के हिसाब से फोल्ड करते हैं कि जो उसकी जो फोल्ड है बिल्कुल सेंटर में आ जाए। जो उसकी जो सेंटर क्रीज होती है वो हमें बिल्कुल टेबल के मिडल में रखनी चाहिए, उससे जो उसकी लेंथ है वो हर साइड में इक्वली बनी रहेगी। नेक्स्ट है हमारा when more buffet cloths are used to cover buffet tables arranged in a line, the overlapping of the cloth should not be facing the entrance as this will be visible to the guest. अब जो हमारी टेबल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा इवेंट होता है तो हमें जो ओवरलैपिंग है कि एक जो बुफे क्लॉथ है उसके ऊपर दूसरे को हम रख रहे हैं और वो जो बिल्कुल गेस्ट को शो कर रही हो चीज़ें, तो ऐसे हमें बिल्कुल भी अरेंज नहीं करने हैं टेबल क्लॉथ्स को, बुफे क्लॉथ्स को सॉरी। तो वो हमें इस तरीके से प्रिपेयर करनी है कि वो गेस्ट को बुरा ना लगे और वो बहुत बैक एरिया में हम उसको जो ओवरलैपिंग कर सकते हैं कि गेस्ट के फ्रंट में ना हो, क्योंकि वो बहुत बुरा लगेगा। थर्ड वन इज द फॉल ऑफ द बुफे क्लॉथ शुड बी इवन ऑल ओवर, स्पेशली ऑन द फ्रंट साइड। कि जो फॉल होती है बुफे क्लॉथ की वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपने पीछे से तो अच्छे से कवर कर लिया लेकिन जो फ्रंट एरिया जो गेस्ट को बिल्कुल सामने से दिखेगी उसको आपने अच्छे से किया नहीं है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो फ्रंट एरिया उसको आपको अच्छे से मैनेज करना, पीछे आपने क्या किया उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। नेक्स्ट है हमारा सैटिन क्लॉथ। अब एक चीज़ और है इसकी, जो बुफे क्लॉथ्स होता है जो बिल्कुल सेंटर क्रीज होती है वो टेबल के बिल्कुल मिडल में होनी चाहिए टू पूरा का पूरा जो है वो कवर हो जाए। और जो जितने भी हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे, जितने भी बुफे क्लॉथ हम एक साथ यूज़ कर रहे हैं उनका जो साइज़ है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक बुफे क्लॉथ है जो छोटा हो गया एक बड़ा हो गया। अब क्योंकि हमारे पास डिफरेंट साइजेस के जो टेबल क्लॉथ है वो अवेलेबल होते हैं, क्योंकि हमारे पास काउंटर अलग अलग होते हैं कि हमारा जूस का काउंटर हो गया, सूप का काउंटर हो गया, जो मेन फूड का काउंटर है वो हो गया, डेजर्ट का, स्वीट का, वाटर, कॉफ़ी, क्लियरेंस एट्सेट्रा। जो हर स्टेशन का अपना अलग अलग एक जो बुफे क्लॉथ होता है वो अलग अलग होता है। और सबसे ज़्यादा बड़ा जो मेन डिश होती है, जो मेन कोर्स होता है, मेन फूड का जो स्टेशन होता है सबसे लंबा होता है और ओवरलैपिंग के चांसेस वहीं पे ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ का हमें ये पॉइंट बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना है इस चीज़ के ऊपर कि जो ओवरलैपिंग है वो बिल्कुल ना ही हो, और हो तो उसको हम बिल्कुल बैक एरिया में करें, फ्रंट एरिया में ना करें, गेस्ट के सामने बिल्कुल भी, कि गेस्ट को दिखे वो चीज़। नेक्स्ट आता है हमारा सैटिन क्लॉथ। The satin cloth is draped around the front side of the buffet table. जो सैटिन क्लॉथ है वो एक आई अपील बढ़ाने के लिए होता है। जो आपका बुफे क्लॉथ होता है उससे बुफे क्लॉथ फॉल जो बनी होती है वो सैटिन क्लॉथ की बनी होती है जो कि बुफे टेबल को कवर करता है, स्पेशली उसकी लेग्स वगैरह को। आपने देखा होगा जैसे साड़ी के जो फॉल होते हैं उस तरीके से उसमें हम कुछ प्लेट्स वगैरह डालते हैं, तो ऐसा सैटिन क्लॉथ की बनी हुई प्लेट्स टाइप ऑफ होती हैं और वो फॉल जो हम बिल्कुल आगे से लगाते हैं डेकोरेशन करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा टी क्लॉथ। टी क्लॉथ बेसिकली हमें वो जो कटलरी एंड क्रॉकरी उसको वाइप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। दिस क्लॉथ शुड बी लिंट फ्री एंड चेंज्ड फ्रीक्वेंटली। अब जो ये क्लॉथ है वो लेंथ फ्री होना चाहिए और जो उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करना चाहिए मैं, क्योंकि जो हम बार बार उसको अगर वाइप करेंगे कटलरी को, क्रॉकरी को, वो बार बार वेट होता चला जाएगा। और उसको बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी है कि जो कटलरी और क्रॉकरी उसको वाइप करने के लिए, उसको ड्राई करने के लिए हमें टी क्लॉथ की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे स्टाफ भी होते हैं, इंटर्न भी होते हैं जिनको पता नहीं होता और वो जो नैपकिन्स हैं उनको यूज़ करते हैं वाइपिंग के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक तरीके से डैमेज कर देता है आपने जो भी
ये नैपकिन्स होते हैं, क्योंकि वो जिस जिस चीज़ का जिस पर्पज़ के लिए जो बनी हुई है उसको उसी तरीके से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर वो डैमेज करने का एक बहुत ईजी सा तरीका है चीज़ों को। आई होप कि आपको लेक्चर में कुछ समझ में आया होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।